स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। तो आज की इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स दैट वी आर डिस्कसिंग प्रीवियसली आल्सो। सो इट्स एन important concept, important chapter of the mathematics, and you have to know each and every part of quadrilateral that will help you in other exams as well, not only in academics but other competitive exam when you are sitting, like for your example in the Olympiad and everything. So it is a very important topic in geometry also. सो प्रीवियसली हम लोग देखे थे कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है, किस टाइप का है, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी जाने थे क्वाड्रिलेटरल का। तो आज की इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेसिफिकली पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे, उसका थ्योरम्स कुछ जानेंगे, क्या क्या उसका आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है देखेंगे, और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। So before starting our class, let me just remind you of the social media platform that we are having. You can subscribe our YouTube channel, that is StudyJust Academy. You can like us on Facebook by writing StudyJust Academy. You can join our Telegram, that is StudyJust School, from 7 to 10. As you can see, the link is provided over here and the screenshot of the Telegram channel is given over here. ये Telegram channel ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि the live classes module are provided from time to time on the Telegram channel. You can raise your doubts in your Telegram channel and your doubts will be cleared in no time. And along with that, main thing is your study notes, that is your homework. You can do your homework effectively from Telegram channel. So do follow us on Telegram. Join our Instagram channel by writing StudyJust, and join our community on WhatsApp by writing this number. And for more information, log into our website, that is www.studyjust.in. As you can see, this is the Android application available on Play Store. Download this application so that you can access each and every type of courses that are provided on StudyJust. You can access the classes, live classes, test series, study material from the application. And application download करने के बाद ये ऐसे दिखेगा आपका मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाउनलोड कीजिए। Next, this is how our YouTube channel looks like. You make sure you subscribe this channel and press this bell icon so that if any free content get uploaded on our channel, you get notified as soon as possible. And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like our Facebook page and also follow it so that you can get n number of study materials from here also. And share it among with your friends also so that they also get benefited from this unique channel of StudyJust. चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के जो थ्योरम है, देखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के मतलब पैरेललोग्राम का। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम इज गिवन एज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हाउ विल सी, देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी। तो डायगोनल एक मान लेते हैं, लेट अस टेक ए सी, लेट अस टेक ए सी डायगोनल। तो क्या होगा, डी आई ए जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मैं क्लियरली लिख देता हूँ थोड़ा सा, डी आई ए जी। तो ये क्या करेगा, ए सी क्या करेगा, इट विल डिवाइड दिस इनटू टू ट्रायंगल्स। कौन सा ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देगा इस पैरेललोग्राम को। अब मुझे क्या क्या प्रूफ करना है कि ये जो पैराग्राम है डिवाइड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां से देखिए एक तो चीज यहां पे हो गया दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा डीप कलर ले लेता हूं। तो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले तो है ए सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, ये दोनों कॉमन साइड है, तो ऐसे ये है कॉमन साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पता है पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड्स है ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग इससे लिख सकते हैं क्या, ए डी इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी सी। ये भी क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का ऐसे हम लोग सिंबल देते हैं, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना। साइड कॉन्ग्रुएंसी के हम लोग बोल सकते हैं क्या,
तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो यहां से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्या जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो जो डायगोनल यहां पे है AC, इट डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो हम लोग यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, तो AC है, ये डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या किए, एक डायगोनल लिए, दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इजी है, बहुत इजी है। याद रखिएगा, हमेशा एक डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करने के लिए मैं पहले ले लेता हूं टू ट्रायंगल्स। यहां पर भी टू ट्रायंगल, एक डायगोनल में उठा लेता हूं। लेट अस टेक डायगोनल BD डिवाइड्स इनटू ट्रायंगल कितना है, BCD एंड ट्रायंगल BAD। ठीक है, बैड ट्रायंगल एंड BCD ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो है पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो वी नो दैट AB parallel to BC and let's say that BD be the transversal। ठीक है, तो BD be the transversal। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल ABD एंड एंगल BCD, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल CDB। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों? ये तो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ऑपोजिट, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में देखे थे कि लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कटती है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती है। तो ये वाला एंगल इक्वल है। फिर क्या करेंगे, BD इक्वल टू क्या होगा, BD इक्वल टू BD, कॉमन साइड है, और हम लोगों को पता है क्या, ये वाला साइड BC इज इक्वल टू, आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करना है, तो ये में हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग और क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला इक्वल है, और ये वाला भी इक्वल टू दिस एंगल, ये भी प्रूफ कर सकते हैं ना। तो एंगल क्या है, CBD इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, एंगल CBD इक्वल टू एंगल ADB। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स फिर से हो जाएगा, है कि नहीं? ऑल्टरनेट एंगल्स फिर से हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD इक्वल टू एंगल। तो यहां से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहां पे साइड भी इक्वल होगा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू AD फ्रॉम दिस कंडीशन 1, फ्रॉम 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे मैं एक बार लाइन खींच देता हूं, तो BC इज फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल टू AD। तो ये तो ऑपोजिट साइड हो गया ना, तो ऑपोजिट साइड यहां से हम लोग क्या प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट्स इक्वल, हेंस प्रूव्ड। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड है वो आपका ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ गया ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैसे इक्वल आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं एकदम प्रूफ के साथ आपको बोलूंगा, एकदम मैं बोलूंगा नहीं कि मेरे को आप विश्वास कीजिए, मैं बोलूंगा कि एकदम प्रूफ देखिए, प्रूफ में देख के बहुत बताइए कि आपको विश्वास आया कि नहीं। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी बाय हार्ट नहीं करना है, समझना है कैसे आ रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेललोग्राम का ऑलवेज इक्वल होता है। ऐसे ऐसा क्या होगा ना, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आता रहेगा, और आप इसका अंदर ये आपका रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप प्रूफ भी देख लीजिए, आप ये एग्जाम में कभी बार आ भी जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 3 पे। इन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज द पैरेललोग्राम। ये क्या दिया है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक डायगोनल ले लेते हैं आपका AC ले लेते हैं। AC डायगोनल
डिवाइड्स किसमें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी एंड एंगल ए डी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड तो इक्वल दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है गिवन इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या, हाँ ए बी सी, सॉरी ये वाला एंगल ए बी सी एंड एंगल ट्रायंगल ए डी सी। इसमें क्या है, अब तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू डी सी, ये तो दिया हुआ है गिवन। और आपको दिया है क्या, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी आपका गिवन है कि नहीं, ये दोनों में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए सी, ये आपका हो गया कॉमन साइड। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ये हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब इससे क्या फायदा होगा, अब इससे क्या फायदा होगा कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, एंगल ए, नहीं ये वाला ले लेते, ये वाला है, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, हम लोग बोल सकते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आप मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसको ये कंडीशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे दो लाइन, तो पैरेलल आपको दिया है, ईच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं लाइन क्या है, ए डी एंड बी सी, और ये आपका ये दोनों लाइन हम लोग मान लेते हैं लाइंस, एंड ए सी एज ट्रांसवर्सल। सो आप देखिए ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, हम लोग तो पहले देख दिए यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहा है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या, कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यहां से हम लोग कह सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी हम लोग सिमिलरली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग इससे कह सकते हैं क्या, इट इज, यहाँ पे इट इज नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लियरली, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम का, बताया था ना, और शॉर्ट फॉर्म क्या है पैरेललोग्राम का। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या किया हम लोग, पहले देखे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया ट्रायंगल का, तो उसके हिसाब से क्या किया हम लोग, ऑल्टरनेट एंगल्स हम लोग दिखा दिए कि प्रूफ सेम है। अगर ऑल्टरनेट हम लोग दो लाइन लेते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल रहता है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये आपका ये दोनों लाइन जो है ये आपका पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो सिमिलरली दूसरा भी पैरेलल हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पैरेललोग्राम। कंडीशन अप्लाइड फॉर पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या था, दोनों ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, दोनों ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपका पैरेललोग्राम में आ गया। ऑपोजिट साइड तो दिया हुआ है, इक्वल तो है ही, और आपका पैरेललोग्राम का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड, बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे फिर से ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, मान लेते हैं ये वाला बी डी, डायगोनल पी डी डिवाइड्स ट्रायंगल क्या होगा, ए बी डी एन एंगल बी सी डी। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो क्या होगा डायगोनल इसमें, इस दोनों में क्या है, इन अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम लोग पैरेललोग्राम तो बोल दिया है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। और क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं क्या, बी डी इक्वल टू बी डी, कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में बोल रहा हूँ, ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो ये तीनों कंडीशन हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी पे, कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी पे आपका बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल बोल सकते हैं क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका ऑपोजिट एंगल। ये दोनों हम लोग पढ़े थे ना, ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल का ऑर्डर ऑपोजिट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ऑपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल है। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं क्या, दूसरा डायगोनल पकड़ के करेंगे तो हम लोग यहाँ से भी ये भी बोल सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। तो ये भी हम लोग सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे जैसे इसको प्रूफ किए, सिमिलरली कर लेता हूँ, सिमिलरली इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं हेंस प्रूव। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कुछ नहीं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किए, ट्रायंगल का डायगोनल को ये डिवाइड करती है वेरी इजी, सॉरी वेरी इजी, कोई भी डायगोनल पकड़ लीजिए, दोनों ट्रायंगल को हम लोग डिवाइड कर दिए, उसको कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूफ कर दिए क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से निकल गया। अब कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल का एंगल भी इक्वल होगा, एंगल हम यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ रहा है, मतलब क्या है, ऑपोजिट एंगल सर इक्वल बोल सकते हैं पैरेललोग्राम में, है कि नहीं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी, ये सब थ्योरम जो है एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको जान के रखना है। जब आप सम्स करेंगे पैरेललोग्राम के ऊपर तो ये सब प्रॉपर्टी वहां पे आपको अप्लाई करना है। अच्छा ऑपोजिट एंगल तो इक्वल था, मतलब ये इक्वल लेना है, तो यहाँ से आप इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको थ्योरम याद रखना है, और कैसे आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे अगर एग्जाम में आपको पूछ देगा तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो चलिए नेक्स्ट थ्योरम है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, हम लोग को पता है। अब हम सी के जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं और डी के जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ये तो गिवन है कि नहीं, ये तो गिवन है। अब ये करेंगे हम लोग ए के जगह, सी के जगह पे हम लोग ए लिख देंगे, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी फिर से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 2 टाइम्स करके आ रहा है, 2 को मैं कॉमन ले लिया बाहर, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, ऐसे वो वाला स्टेप थोड़ा जंप कर दिया। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इसको मैं 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360/2, मतलब क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री यहाँ पे आ गया। तो अब क्या दिया है, अब इसको मान लेते हैं 2 लाइन है, ए डी लाइन को एंड बी सी लाइन को, एंड ए बी एज ट्रांसवर्सल, ठीक है।
ए बी हम लोग लिए ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन का ए बी इसको ट्रांसवर्सल ले लिए। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ए डी एंड बी सी, और ये दोनों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या है, ये दोनों है मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सप्लीमेंट्री आ रहा है, 180 मतलब सप्लीमेंट्री। और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांस, ठीक है, ट्रांस में लिख दिया RANS, ट्रांस, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये सप्लीमेंट्री आ रहा है, मतलब 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि AD इज पैरेलल टू BC। सिमिलरली इस केस में ऐसे किए, ये वाला भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली, AB इज पैरेलल टू CD, सिमिलरली भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली। तो इसी कंडीशन से हम लोग क्या कह सकते हैं क्या कि मैं यहां पे लिख देता हूं, ABCD इज पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। तो ऐसे हम मैं लिख सकता हूं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से बोल सकते हैं, यहां पर मतलब ये प्रॉपर्टी से आ सकता है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अगर इक्वल रिया हुआ है कोई सी क्वाड्रिलेटरल का तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड थ्योरम नंबर 5। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, आपका डाउट हम लोग क्लियर करने के लिए एकदम एज सुन एज पॉसिबल हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब कि दोनों को इक्वली कटता है। तो पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे, आप लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे मान लेते हैं दो ट्रायंगल, लेट अस टेक, और तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं O, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग O मान लेंगे तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, लिख देता हूँ, टू प्रूफ OA इक्वल टू OC, ये प्रूफ करना है, एंड OB इक्वल टू OD, ये आपको प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC, गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे AD इक्वल टू BC दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये वाला दो इक्वल, ये लाइन है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल OBC इक्वल टू एंगल ODA, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब इसको हम लोग ट्रांसवर्सल ले लेंगे तो ये वाला एंगल इक्वल आएगा ना, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो हम लोग को ये पता है ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOD, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे हम लोग अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब मतलब इसके मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC। ये साइड भी आपका इक्वल होगा ना, ये साइड भी आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो प्रूफ करना था, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट
each other. ठीक है, parallelograms of ये diagonals bisect each other, hence proved. ठीक है, ये था आपका थ्योरम नंबर 6. तो इजी था. ये सब क्या है, मतलब आपको जानना है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, ये बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, ये आपको जानना है. तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करके आपको दिखा दिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं. नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स अ पैरेललोग्राम. इफ अ डायगोनल ऑफ अ ये बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों इक्वल है. ठीक है, देन इट्स अ पैरेललोग्राम, आपको प्रूफ करना है. आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है इट्स अ पैरेललोग्राम. तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे मान लेते हैं O है. ठीक है, AOD एंड ट्रायंगल BOC. यहाँ पे क्या होगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो ये इक्वल होता है, ये हम लोग पढ़े हैं पहले. तो ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट. अब दिया हुआ है OA इक्वल टू OC गिवन, और यहाँ पे दिया है OB इक्वल टू OD, ये भी गिवन है. ये बाइसेक्ट ईच अदर दे रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC का बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी. ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए. तो यहां से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो हाली बात है कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल ODA ऐसे होगा. ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल है ट्रायंगल का. तो यहां से हम लोग अगर लेंगे तो आप लोग यहां से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इफ वी टेक AD and line BC and BD as transversal, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों देख सकते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो यहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या, AD is parallel to BC. Similarly हम लोग बोल सकते हैं AB parallel to CD also. तो ये अगर पैरेलल है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका ऑपोजिट एंगल तो आपका ऑपोजिट साइड सेम है, और आपका यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट है तो सेम है, साइड भी सेम है, और आपका एंगल भी यहाँ पे ये भी प्रूफ कर दिए दोनों पैरेलल है और साइड भी सेम है. यहाँ से आपका ये भी बोल सकते हैं क्या, AD इक्वल टू BC एंड एंगल एंड इट इज पैरेलल. तो यहाँ से हम लोग ये दोनों कंडीशन से बोल सकते हैं क्या, ABCD इज पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड. मतलब जो कंडीशन है पैरेललोग्राम का वो सेटिस्फाई हो रहा है. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कोई भी डायगोनल अगर एक क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ये हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए और एक थ्योरम देख लेते हैं, ये लास्ट थ्योरम है, बहुत सारा थ्योरम हो गया, ये पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है अभी, मगर थोड़ा ध्यान रखिए, हम लोग इसके बाद थोड़ा एप्लीकेशन देख लेंगे, फिर क्लास को रैप अप कर देंगे. ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है इफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, अगर ये हम लोग प्रूफ कर दिए तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है. अब अपोजिट साइड्स है, ये आपको इक्वल दिया है, क्या दिया है, अपोजिट साइड मतलब AD इक्वल टू BC तो दिया हुआ है, एंड अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी दिया है. तो यहाँ से आपका एंड AD पैरेलल टू BC भी दिया है. तो ये दोनों ट्रायंगल फिर से मान लेंगे, क्या क्या ट्रायंगल है, B यहाँ पे मान लेते O, BOC एंड ट्रायंगल इन लिख देते हैं, इन ट्रायंगल BOC एंड AOD. हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे तो देखिए एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ठीक है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पैरेलल दिया है तो ये वाला लिख सकते हैं क्या, ये इक्वल भी दिया है, AD इक्वल टू BC गिवन, और एंगल OBC इक्वल टू एंगल ODA, क्योंकि ये पैरेलल दिया है
अगर पैरेलल है तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्रायंगल कैंगल क्या प्रूफ कर सकते हैं, ट्रायंगल आप आपका ये प्रूफ कर सकते हैं क्या, ये है आपका मतलब ट्रायंगल ए बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाय कितना है, साइड एंगल साइड, नहीं एंगल साइड एंगल है कि नहीं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं। अब क्या हो गया, अगर ये बोल सकते हैं ये आपका पैरेलल है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों एंगल जो है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों एंगल इक्वल है। समझ में आया? इतना से हम लोग कह सकते हैं क्या, यहां से हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं क्या, यहां से ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो हेंस ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इक्वल भी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये आपका हो गया आपका मतलब पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, आपको जस्ट कॉन्ग्रुएंसी देखना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कैसे करना है, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेक्टेंगल बोला है, स्क्वायर प्रूफ करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल बी डी, ए बी सी डी, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, इसको इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब ये दिस इक्वल टू एंगल यहाँ पे दिया है गिवन, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी। ठीक है, ये दिया है, ये वाला एंगल दिया है, आपको शो करना है क्या, ये ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी आपको प्रूफ करना है, ये स्क्वायर है। नाउ ये रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ये आपका हो जाएगा आपका ये वाला एंगल इक्वल टू, अब दोनों देखिए रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल का कंडीशन है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये दो पैरेलल साइड है, ये दो पैरेलल साइड है और ये दो इक्वल भी है। ठीक है, अब ये इसको क्या होगा, ये वाला एक साइड, तो ये तो रेक्टेंगल दिया है, तो ये वाला एक साइड क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से जब इसको इक्वल इसको बाइसेक्ट करता है तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 45, ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ना ये दोनों देखिए, अब ये दोनों ए डी एंड बी सी तो आपका पैरेलल है, एंड बी डी एस ट्रांसवर्सल करेंगे तो ऑपोजिट एंगल भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल भी पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट, इन्हें क्लियरली लिख देता हूं, एक मिनट, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाला भी 45 हो जाएगा, ये वाला भी 45 हो जाएगा। अब सो इन ट्रायंगल ए बी डी ये क्या हो गया, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ACLES आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो आपका साइड इक्वल होता है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए डी इक्वल टू ए बी। सिमिलरली बी सी इक्वल टू सी डी भी बोल सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी, ये भी आइसोसेलेस हो रहा है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है तो साइड भी इक्वल होगा, CELES ये भी आपका दोनों इक्वल हो रहा है। तो अगर ये सी डी और बी डी इक्वल हो रहा है, ये भी इक्वल हो रहा है, तो वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये कब होता है, स्क्वायर के केस में। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे स्क्वायर हो रहा है, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, कि इट इज अ स्क्वायर। आसान है,
कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका एंगल निकाले। इसको हम लोग को पता है कि राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 45 वो 45 है, और आपका रेक्टेंगल पैरेलल में होता है, दोनों साइड ऑपोजिट साइड, तो इसको ट्रांसवर्सल ले लिया तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिंग एंगल्स आर इक्वल, तो 45 इधर है तो ओवर भी 45 हो गया। अब उसको क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया तो क्या होगा, साइड आपका इक्वल होगा। तो इसी तरीके से दोनों ट्रायंगल का साइड बराबर है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट्स अ स्क्वायर। अंडरस्टूड? चलिए ऐसे आपको एग्जाम में करना है। अब यहाँ पे दिया इफ एंगल ए बी सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is taken in order of ratio of 3:7:6:4, then so that ABCD is a trapezium। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ABCD आपको शो करना है ट्रेपेजियम है, तो इसका एंगल क्या है, मान लेते हैं एंगल A है आपका 3, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D, ये क्या है 3:7:6:4। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं लेट एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 7x, एंगल C इक्वल टू 6x एंड एंगल D इक्वल टू 4x मान लेते हैं। अब क्या पता, हम लोग को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ उतना मैं नहीं लिखूंगा, 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी का ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 4 10 17 20x इक्वल टू 360, 0 0 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 18। x का वैल्यू आपका आ गया 18। तो x का वैल्यू अगर 18 आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल A कितना हो जाएगा 3x, मतलब 18 इंटू 3, 18 3 से कितना है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 54, यहाँ पे राइट रफ में दिखाना है, ठीक है, रफ करके दिखाना है। 18 इंटू 3 8 3 24 एंड 2 3 3 4 5 54 मैं डायरेक्टली लिख सकता था, ये आपका अगर लिख सकते तो हो सकता है, अगर रफ में दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और एंगल B क्या हो गया आपका एंगल B हो गया 7x, मतलब 7 इंटू 18 7 यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 18 इंटू 7 7 8 56 एंड 5 7 1 7 8 9 10 11 12 126, तो ये 126 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपका एंगल C और एंगल D ये भी आप निकाल लोगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रूफ करना एज अ ट्रेपेजियम। तो आप मैं अगर लाइन सेगमेंट लेता हूं, मैं थोड़ा यहाँ पे इंक चेंज कर देता हूं तो आपको देखने में सुविधा होगा। यहाँ पे अगर मैं लेता हूं AD एंड BC एंड AB एज ट्रांस, मतलब ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल इक्वल सप्लीमेंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 54 प्लस 126 इक्वल टू 180 हो रहा है, तो हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये 180 फॉर्म हो रहा है दोनों मिला के, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। जब ये सप्लीमेंट्री है सप्लाई कर दिया, ये अगर सप्लीमेंट्री है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC अगर हो रहा है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, ये ट्रेपेजियम का आपका एक कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड एक का ये पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, इज अ ट्रेपेजियम। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब ये दोनों एंगल ही पकड़ सकते हैं, तो सेम रहेगा, ये दोनों एंगल अगर आप लेंगे तो ये दोनों भी 180 हो रहा है, तो मतलब ये दोनों एंगल आपका, ये दोनों साइड आपका पैरेलल लग रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, इट इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। क्योंकि एज पर द कंसेप्ट इफ AB इज अ ट्रांसवर्सल एंड AD एंड BC आप दोनों लाइन ले रहे हैं, एक को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल होता है। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में देखे थे। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव इट इज अ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, A diagonal of a rectangle ABCD intersect at point O। यहाँ पे देख लेते हैं रेक्टेंगल, डायगोनल क्या कर रहा है, यहाँ पे एक डायगोनल और यहाँ पे एक डायगोनल, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ABCD and D इंटरसेक्ट एट पॉइंट O such that एंगल COD ये वाला एंगल 78 दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल OAB ये वाला एंगल आपको पूछा गया कितना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको हिंट दे देता हूँ, ये 78 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये 78 हो जाएगा,
ठीक है, ये 78 ये 78 है गए। अब ये दोनों एंगल भी आपका इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है। टोटल कितना होता है 360 होता है। मैं यहाँ पे करके देख देता हूँ, हो जाएगा 78 प्लस 78 प्लस ये मान लेते हैं हम लोग एंगल x है, प्लस x प्लस x इक्वल टू 360, क्योंकि टोटल एंगल ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 360 माइनस कितना होगा 78 प्लस 78 कितना हो रहा है 78 प्लस 78 कर देंगे 8 8 16 एंड 1 एंड ये हो जाएगा 7 7 14 56 156 हो जाएगा, माइनस 156 करेंगे। 360 से 156 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 156। मैं एकदम करके दिखा दे रहा हूँ, कोई भी वैल्यू आपको मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, मैं आपको दिखा के कर रहा हूँ। 6 और 4 6 कट के हो जाएगा 5 ये 0 हो जाएगा, 3 कट के 2 1 एंड 1 2 सॉरी 6 5 और 5 0 ये 2 नहीं कटेगा, ये जाएगा ये 204 हो जाएगा, 204 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 204, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 204/2 मतलब 102। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 102, ये 102 है, ये भी 102 है, ठीक है 102 यहाँ पे आ गया। आप देखिए आप दिया है ना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हम लोग को पता है क्या, हम लोग का रेक्टेंगल का पता है, यहाँ पे ये निकालने से भी चलता नहीं भी निकालने से चलता, मैं ऐसे ही आपको निकाल दिया दो ताकि आपका ये सुविधा हो, ठीक है। आप मुझे पूछा है ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे 78 दिया है एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OA इक्वल टू OB वी कैन से दैट इन अ रेक्टेंगल, है कि नहीं। तो दैट मीन्स एंगल OAB इक्वल टू एंगल ABO, ये लिख सकते हैं दिस वाला एंगल इक्वल टू दिस वाला एंगल, हम लोग लिख सकते हैं ना, बिकॉज इट बाइसेक्ट्स ईच अदर एंड इट मेक्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ वी कंसीडर ट्रायंगल AOB इट्स अ आइसोसेलेस आइसो ट्रायंगल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ इन दिस ट्रायंगल AOB क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं यार 2 एंगल A, क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है आइसोसेलेस में, तो 2 एंगल है हम लोग लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 78 इक्वल टू 180, तो 2 एंगल A कितना हो जाएगा 180 माइनस 78 मतलब कितना हो गया 102। तो एंगल A कितना हो जाएगा 102/2 इक्वल टू 2 5 10 51, सो A इक्वल टू 51। तो एंगल A मतलब एंगल OAB इक्वल टू 51 डिग्री, ठीक है, इट इज इक्वल टू 51 डिग्री। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 78 इधर दिया है तो वर्टिकली ऑपोजिट इधर भी 78 आ गया। अब ये रेक्टेंगल है मतलब बाइसेक्ट करता है बाई डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OA इक्वल टू OB आ रहा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B है। अब ये टोटल कितना बनाता है 180 डिग्री बनाता है, तो उसमें से क्या करेंगे 78 माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपका A का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज एंगल OAB का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 51 डिग्री। अंडरस्टूड, वेरी इजी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ यू हैव लाइक द सेशन, मेक श्योर you like, share and subscribe. Also tell your friends about the StudyJust so that they also get benefited from this unique channel of StudyJust. We'll meet you in the next class with some more properties of quadrilateral and some more concept of quadrilateral. Till then, take care and goodbye.